Hello. കേൾക്കാം മിസ്സേ. Am I audible? Yeah. Mhm. We can hear. Hello. കേൾക്കാം. മിസ്സേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മിസ്സേ. കേൾക്കാം. क्या मेरी आवाज आती है क्या? We can hear, miss. No problem. I think cannot hear you. you are not able to hear us. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരിയായി. Okay. ഞാനൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. Okay. No problem. അഞ്ജു മിസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മിസ്സേ? യെസ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം മാറിയോ? മാറി. താങ്ക് യു സാർ. ഞാൻ ആരെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരാളെ എന്റെ അകത്തേക്ക് ദീപാഞ്ജലി മതി. ദീപാഞ്ജലി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ആളെത്തും, ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ. സ്ലൈഡ് വരുന്നുണ്ടോ മിസ്സേ? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇനി കാണാനേ പറ്റില്ല. അത് അതിന്റെ അകത്ത് വ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടരുത്. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും മതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫുൾ സ്ക്രീൻ എടുക്കാതെ അതിനകത്ത് വ്യൂവില് റീഡ് വ്യൂ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻ വ്യൂവില് ടാബ് കണ്ടോ? ആ വ്യൂ ടാബ് വ്യൂവില് ടാബ് അല്ലേ? വ്യൂവില് റീഡ് മോഡ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുമ്പോ ഫുൾ ആയിട്ട് പോവില്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ സർ, അതെവിടെയാണ്? അത് പഴയ മോഡ് ഇതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റാത്തത്. പുതിയതിലേ ഉള്ളത് ആണോ? ഓക്കെ. ഒരു സൈഡില് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാ മതി. ഈ രീതിയിൽ ഇട്ടാ മതി സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ടാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. മിനിമൈസ് ചെയ്തിടാണ്. അല്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. ആ ഒരു സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാർ അത് പ്രസന്റേഷൻ മോഡിലോട്ട് കൊടുക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും. അഞ്ജു മിസ്, എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്? 32 പേരായല്ലോ. എത്ര പേരെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അഞ്ജു മിസ്സിനെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദീപാഞ്ജലിനെയും കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കോളാം.
ദീപാഞ്ജലി, കേൾക്കാമോ? ദീപാഞ്ജലി ദാവിദാസ്. ആ സർ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ മിസ്സിനെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ മിസ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. മിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവർ ജോയിൻ ആയിക്കോളും. 5 മിസ് മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നെറ്റ് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യുള്ളൂ, അവിടെ നടന്നോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ദീപാഞ്ജലി, ഹലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. മിസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ആണോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അഞ്ചു മിസ് 7:05 ആയല്ലോ, ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ओके सर, ओके ओके. आदिरा? हाँ यस मैम. तो शुरू कीजिए. हाँ मैम. हर दिन एक नई शुरुआत लाती है, पूरे दिन का नेक संकल्प सजाती है. जिसने जाना हर दिन का महत्व, ये दिन उसी को खूबसूरत बनाते हैं. नमस्कार. देवमाता कॉलेज कुरवलनाड के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी भाषा दशा और दिशा वेबिनार में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. आज इस शाम को ज्ञानवर्धक और मनोरंजक बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती डॉक्टर शालिनी जोश,
असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी, भारत माता कॉलेज त्रिकाकरा, कोच्चि। डॉक्टर सुनील सी मैथ्यू, प्रिंसिपल, देव माता कॉलेज। श्रीमती अंजू बी, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, देव माता कॉलेज। श्रीमती दीपांजलि देवदास, गेस्ट लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, देव माता कॉलेज। और अन्य अध्यापकगण जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व आओ हम सब मिलकर प्रभु से दुआ मांगे। प्रार्थना गीत के लिए मैं कुमारी शरीसा शरीफ को स्वागत करना चाहती हूँ। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम ही जग के ज्ञान दाता, तुम ही जग के ज्ञान दाता। सुनो मेरे पुकार, जग के ज्ञान दाता। आओ गुरुदेवा, दर्शन दे दो तुम्हारा। धन्यवाद शरीसा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती अंजू मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे हमारे विशेष संसाधक डॉक्टर श्रीमती शालिनी जोश का अभिनंदन करें। धन्यवाद आदिरा। देवमाता कॉलेज कुरवलंगाड़ के प्राचार्य डॉक्टर सुनील सी मैथ्यू सर, इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर शालिनी जोश, अन्य अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं, सबको मेरा प्रणाम। हिंदी जानने वाला व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर अपना काम चला लेता है। यह मेरा नहीं बल्कि भारत के एक महान शिक्षाविद देवव्रत शास्त्री का कथन है। आप जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा है। हिंदी आम आदमी की भाषा होने के कारण देश की एकता का सूत्र भी है। लेकिन एक अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ते हुए आप लोगों के मन में जरूर यह शंका उठी होगी कि हम क्यों हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने की जरूरत क्या है, हिंदी पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। आज के संगोष्ठी आपके इन सभी सवालों का उत्तर देने का एक छोटा सा प्रयास है। ज्यादा नहीं कहूंगी, अपने कर्तव्य की ओर जा रही हूँ। मेरा कर्तव्य है कि इस संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत करना। सबसे पहले मैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील सी मैथ्यू सर का स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि यह संगोष्ठी मेरा प्रयत्न नहीं बल्कि हमारे प्राचार्य डॉक्टर सुनील सी मैथ्यू सर की प्रेरणा का परिणाम है। सर, इस संगोष्ठी में मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार हमारे कॉलेज के जूलॉजी विभाग के अध्यापक डॉक्टर सुनील जोश सर का भी मैं अहम विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। इस संगोष्ठी को आयोजित करने में सर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, इस संगोष्ठी में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में हमें भारत माता कॉलेज त्रिकाकरा के हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर शालिनी जोश को मिल गया है। पिछले 20 सालों से वे अध्यापन कार्य कर रही है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। यूजीसी के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। यही नहीं, NPOL जैसी संस्थाओं में हिंदी भाषा संबंधी अनेक वर्कशॉप और वेबिनार भी उनके नेतृत्व में सफल हो चुके हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह संगोष्ठी आप सभी छात्र छात्राओं के लिए निश्चय ही लाभकारी होंगे। शालिनी मैम, मैं तहे दिल से इस संगोष्ठी में आपका हिंदी विभाग और देवमाता कॉलेज कुरवलंगाड़ की तरफ से स्वागत करती हूँ। अंत में यहाँ उपस्थित अन्य सभी अध्यापक बंधुओं,
खासकर विभाग की अतिथि अध्यापिका डॉक्टर दीपांजलि है श्रीमती, और अन्य सभी छात्र छात्राएं हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। हमारे जीवन में अनेक गतिविधियों हैं जिन्हें भाषा के माध्यम से संपन्न किया जाता है। आज इस वेबिनार के माध्यम से हिंदी भाषा दशा और दिशा पर प्रकाश डालने के लिए हमारे समक्ष डॉक्टर शालिनी जोश उपस्थित है। मैम, आपका स्वागत है। हेलो शालिनी मैम। हेलो। അഞ്ജു മിസ്സേ, എങ്കിൽ വേറെ ആരെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കാൻ നോക്ക്. സമയം മിസ്സേ, നമ്മുടെ വക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യ വക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാലിനി മിസ്സാണ് ലൈനിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, മിസ്സാണ് പോയതല്ലേ. മിസ് പക്ഷെ എന്താ താമസം എന്ന് മെസ്സേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ, ഞാനൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവുകയാണ്. ഹലോ, സുനിൽ സാർ ഉണ്ടോ ലൈനില്? ഹലോ ഹലോ. ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. സാറ്, ശാലിനി മിസ് ഇപ്പോഴാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. സാറ് മിസ് ഇടയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിഷയം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി വേണോ അതോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ എന്താണ് തുടങ്ങാത്തേന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മിസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തോളൂ. മിസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തോളൂ. യെസ്, ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുമോന്ന് പറയണേ. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ओके, तो आपने जो कहा मैंने नहीं सुना, यद्यपि मैं समझती हूँ कि आपने मेरा स्वागत किया होगा, और आपके हार्दिक स्वागत के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद भी अदा करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं देवमाता कॉलेज कुरवलंगाड़ के रिसर्च प्रमोशन काउंसिल को हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने शोध की प्रगति के मद्देनजर यह ठोस कदम उठाई है, और देवमाता कॉलेज खासकर हिंदी विभाग और अंजू जी की ओर अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ऐसा सुअवसर प्रदान किया।
आपके इस महत्वपूर्ण कार्य में हिस्सा लेने योग्य मुझे समझा, इसके लिए भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपकी प्रतीक्षा के मुताबिक आप सब थोड़ा जब्र रखिए, शायद कोई तकनीकी समस्या है। वे लोग अभी ज्वाइन करेंगे। ओके हाँ मिस ओके ओके, तो मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। ओके मिस ओके मैं समझती हूँ कि वो चली जाती है। नेट का प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं ना हिंदी? दिखाई नहीं दे सायरा, रहा है लेकिन सुना।
हाँ हाँ मैम, स्लाइड देखते हैं। ओके, स्लाइड देख पाती स्लाइड, हूँ। ओके ओके हाँ मैम, इट तो इज क्लियर। हाँ ओके। तो मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती थी और अब मैं हिंदी से संबंधित आधारभूत जानकारी देना चाहती हूँ। और मैंने कहा कि हिंदी भाषा के बारे में जो आधारभूत जानकारी देनी है वो देने की कोशिश करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपकी प्रतीक्षा के मुताबिक ही मैं अपना भाषण करूँगी। और हिंदी आप जानते हैं, हिंदी संवैधानिक रूप से माने भारत के संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है और भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के मानकीकृत रूप को माने स्टैंडर्डाइज्ड हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिसमें राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, और जिसमें इस ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी माने राजभाषा हिंदी में संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द बहुत ही कम है। भारत की अधिकांश जनता हिंदी जानती है। हिंदी को भारत की संपर्क भाषा का रूप भी दिया गया है। तो हिंदी भाषा का स्थान विश्व के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को चौथा स्थान प्राप्त है। मैंडरिन, स्पेनिश, अंग्रेजी और बाद में हिंदी चौथे स्थान में आती है। और उर्दू मिश्रित हिंदी जो हिंदुस्तानी रूप जो है बोली जाने वाली भाषा के रूप में तीसरा स्थान प्राप्त है। और हिंदी का उद्भव और हिंदी के उद्भव के बारे में यदि कहूँ तो हिंदी का मूल अर्थ है हिंद। हिंदी शब्द हिंद से बना हुआ है और इस शब्द का संबंध सिंधु से माना जाता है। सिंधु माने ये सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास के जो देश है, जो भूमि है, उसको सिंधु कहने लगे। और यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ था हिंद प्रदेश माने सिंध प्रदेश। धीरे धीरे पूरे भारत के लिए हिंद शब्द का प्रयोग होने लगा। तो हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। तो हिंदी शब्द अपने विस्तृत अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोले जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है और भाषा विज्ञान में यह पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को मानते हैं। संकुचित अर्थ में हिंदी खड़ी बोली हिंदी है। ये मैं बता देती हूँ कि प्राचीन आर्य भाषाओं में संस्कृत थी, उससे पाली का विकास हुआ और उसके बाद प्राकृत, उस प्राकृत से अपभ्रंश नामक भाषा समूह का विकास हुआ और उससे कई अपभ्रंश का विकास हुआ और उसमें शौरसेनी अपभ्रंश के। तो आप विद्यार्थी हैं तो उन सभी भाषाओं पर या अपभ्रंशों पर बात करने की जरूरत नहीं है कि हिंदी भाषा आजकल हम राजभाषा के रूप में जिस हिंदी का उपयोग करते हैं वह कहाँ से उद्भूत है, वह शौरसेनी अपभ्रंश से उद्भूत है। तो असल में हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी माने एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो उपभाषा है उसके 5 उपभाषाएं हैं हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और 5वां बिहारी हिंदी। और उस पश्चिम हिंदी की इतनी सारी बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली, कनौजी। और पूर्वी हिंदी नामक उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो इतनी सारी बोलियों का समूह है हिंदी। हिंदी भाषा के अंतर्गत 17 बोलियां आती है
और हिंदी सुनते ही आप किसी एक और एक ही हिंदी के बारे में आप मत सोचिए, बल्कि इन सारी भाषाओं को, उपभाषाओं को हम हिंदी ही कहते हैं। और यहाँ विषय है हम कौन सी हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में अपनाया है। देखिए शौरसेनी अपभ्रंश, उसकी 5 उपभाषाएं और उन उपभाषाओं की 17 बोलियां, उन 17 बोलियों में एक है खड़ी बोली हिंदी। देखिए आप, ये खड़ी बोली हिंदी को, इस खड़ी बोली हिंदी को माने संस्कृत निष्ठ हिंदी को हम कहते हैं राजभाषा हिंदी। ये इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि वाली खड़ी बोली हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में चुना गया है, समझे। तो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, माने संस्कृत से उद्भूत, संस्कृत से आए हुए शब्द यानी तत्सम शब्द, संस्कृत के कुछ शब्द हम उसी प्रकार उपयोग करते हैं और कुछ शब्दों का हिंदीकरण करके तद्भव शब्द। तो इन शब्दों का समूह है खड़ी बोली हिंदी। तो इसी खड़ी बोली हिंदी को संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहते हैं, मानक हिंदी कहते हैं, परिनिष्ठित हिंदी कहते हैं। तो वही है देवनागरी लिपि वाली खड़ी बोली हिंदी। तो उसको राजभाषा का रूप दिया गया। तो यही हिंदी हम पढ़ते हैं, इसी हिंदी को हम सीखते हैं। तो हमारे स्कूलों में जो हिंदी पढ़ाई जाती है वो ये खड़ी बोली हिंदी है। यद्यपि ब्रज, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी आदि हिंदी भाषाएं हैं, और उत्तर भारत से जब भी कोई आते हैं हम लोग कहते हैं, हम लोग बुलाते हैं हिंदी लोग, और हिंदी वाले हम कहते हैं, लेकिन उनकी हिंदी और हमारी हिंदी में बिल्कुल अंतर है। और उनकी हिंदी हमारे समझ में थोड़ा ही आ जाएगा और हमारी हिंदी उनकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी हिंदी तो साहित्यिक हिंदी है। तो साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का उपयोग हो रहा है, समझे। तो हिंदी के वर्णमाला में स्वर और व्यंजन इस प्रकार, स्वर 11 स्वर है और व्यंजन 33 व्यंजन है। तो कुल मिला के 44 वर्ण है हिंदी में। तो देखिए आ इ ई उ र ए आई ओ औ, यही हिंदी के स्वर है। आप सोचेंगे कि अम और अहा क्यों नहीं आए, लेकिन हिंदी के वर्णमाला में ये शब्द, ये स्वर ही आते हैं। और वो तो संस्कृत शब्दों में अम और अहा का उपयोग होता है। और व्यंजन आप देखिए का, ख, गा, ख, ङ, चा, छा, जा, छा, ञ, टा, ठा, डा, ठा, ना, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, फा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। तो इनको कुल मिला के 11 स्वर और 33 व्यंजन मिला के 44 वर्ण हिंदी की वर्णमाला में है। और आप सोचेंगे क्ष, त्र, ज्ञ क्यों नहीं है, क्योंकि वो संयुक्त अक्षर है, ये वर्ण में नहीं है, तो संयुक्त अक्षर है। तो देखिए अगला कार्य, हिंदी का परिवार, माने हर भाषा की अपनी एक फैमिली होती है। हिंदी का परिवार है, हिंदी का परिवार हम कहते हैं। संसार में कुल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, और उन सब भाषाओं को हम अलग अलग परिवारों में लिखते हैं। तो इस प्रकार लिख दिया गया है। और ध्वनि, व्याकरण, शब्द समूह माने साउंड और ग्रामर, वर्ड स्ट्रक्चर, शब्द समूह आदि का विश्लेषण करके तथा उसके जियोग्राफिकल कंडीशंस देख के, भौगोलिक निकटता का विचार करके इन भाषाओं को कई परिवारों में बांटा दिया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो 12-13 परिवार है संसार में, कुल मिला के भाषा परिवार है। इसमें हिंदी सबसे बड़ा परिवार भारोपीय परिवार में आती है, समझे। तो हिंदी का परिवार विश्व भाषाओं के परिवारों में सबसे बड़े परिवार है भारोपीय परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली, तो उसमें आती है। देखिए वहाँ वह कहाँ की भाषाएं उस भारोपीय परिवार में आती है। अब देखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
नेपाल, ईरान, यूरोप का अधिकांश भाग, अमेरिका का कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया आदि इस भारोपीय परिवार की जगह है। तो यहाँ की भाषाएं भी इस भारोपीय परिवार में आती है। देखिए भाषाएं क्या क्या है, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी, हिंदी, मराठी, बंगाली आदि भाषाएं भारोपीय परिवार में आती है। तो देखिए आप देखिए अंग्रेजी और हिंदी एक ही परिवार की भाषाएं हैं। मराठी, बंगाली, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन, ये सब एक ही परिवार की भाषाएं हैं। और हिंदी क्षेत्र आप देखिए भारत में हिंदी क्षेत्र कहाँ है, कहाँ हिंदी बोली जाती है, माने 17 बोलियां हैं आपने सुना, तो कहाँ कहाँ तक है, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में हिंदी बोली जाती है। और हैदराबाद में हिंदी है, वो उसका दक्खिनी, उसका नाम है दक्खिनी हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी है, तो वहां भी हिंदी है। और हमारी खड़ी बोली हिंदी को हम दूसरा नाम देते हैं साहित्यिक हिंदी है। तो साहित्य में 1850 के बाद खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा था, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक के महान साहित्यकार ने अपनी गद्य रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। तो तब तक हिंदी में हिंदी साहित्य हम जब कहते हैं, उसके पहले के साहित्य में ब्रज, अवधी जैसी भाषाओं का प्रयोग होता था। और अब तो आधुनिक काल तक आते आते खड़ी बोली हिंदी का उपयोग होने लगा। एक बोली दी, असल में बोली का मतलब आप जानते हैं ना, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा दी। लेकिन एक बोली भाषा के रूप में कब विकसित होता है, जब उसके बोलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। और एक बोली भाषा बनती है जब उसमें साहित्यिक रचनाएं होती है और उसमें सरकारी कामकाज होती है। तो बोलने वालों की संख्या बढ़नी है, समाचार पत्र होना है, पत्रिकाएं होनी है, साहित्य होना है। तो इस प्रकार, और इस भाषा में लिखने वाले कई लोग होना है। तो इस प्रकार खड़ी बोली नाम की एक छोटी सी बोली एक भाषा के रूप में विकसित हुआ। तो हम इसे कहते हैं साहित्यिक हिंदी है, राजभाषा है, माने ऑफिशियल लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा का मतलब जानते हैं, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है। संपर्क भाषा माने हिंदी, भारत हम जानते हैं कि कोस कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर पानी, ऐसा कहते हैं कि भारत में इतने सारे राज्य है, स्टेट्स है, हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा होती है। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो भारत में एक भाषा की जरूरत थी, जिससे उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूर्व के सब लोगों को इकट्ठा करने के, तो सब लोग हिंदी समझने लगे और हिंदी सीखने लगे। और राष्ट्र प्रेम, यदि आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो हिंदी से प्रेम करो, ऐसा गांधी जी ने भी कहा था कि सब लोग हिंदी सीखने लगे। और हिंदी आसान भाषा, सरल भाषा, इसलिए सबको समझ में आती थी। तो हिंदी एक संपर्क माध्यम था। तो सब तरह के लोगों को इकट्ठा करने में हिंदी की बड़ी भूमिका रही है, इसलिए हम कहते हैं हिंदी संपर्क भाषा है। और परिनिष्ठित हिंदी है, माने रिफाइंड हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी है। तो ये खड़ी बोली हिंदी के क्षेत्र वास्तव में देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि क्षेत्र थे। लेकिन अब तो हम केरल में भी, और जब कहीं हिंदी क्षेत्र है, वहाँ की शिक्षा का माध्यम जो है यह खड़ी बोली हिंदी है। अब शिक्षा का माध्यम ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन खड़ी बोली हिंदी है। तो हिंदी का ये छोटी सी बोली जो है इतनी बड़ी भाषा के रूप में विकसित हुआ है, समझे। तो राजभाषा हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ऑफिशियल कार्य के लिए उपयुक्त भाषा। तो हिंदी देवनागरी लिपि वाली
साहित्यिक हिंदी को, खड़ी बोली हिंदी को राजभाषा के रूप में बनाया गया था। 1949 सितंबर 14 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया था। तो उसके मुताबिक आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिंदी। ये ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है? इस ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब माने संघ, माने केंद्र सरकार द्वारा जो भी पत्राचार होता है, जो भी कम्युनिकेशंस होता है, वो हिंदी में होनी चाहिए, समझे? तो वो नियम है। और ऐसा कहा गया था कि 15 सालों के अंतर्गत, माने विद इन 15 ईयर्स हमें अंग्रेजी को पूरी तरह कामकाज की भाषा से मिटाना है और वहां हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। और क्योंकि तब भी स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी ही चालू होती थी, अंग्रेजी में कामकाज होती थी और पत्राचार होता था। तो इसलिए भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का रूप दिया गया था। लेकिन ऐसा मैंने कहा कि 15 वर्ष के अंतर्गत अंग्रेजी को पूरी तरह इस पत्राचार से मिटाना है और हिंदी का ही प्रयोग होना है, ऐसा नियम रखा गया था। लेकिन 15 वर्ष के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। इसलिए राजभाषा अधिनियम माने 1963 में 1963 में एक राजभाषा अधिनियम हुआ। इसके अनुसार उसके नियम है, केंद्रीय सरकार के कार्यालय से किसी भी राज्य या व्यक्ति को पत्राचार हिंदी में होना है। यदि अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी अनुवाद भी होना है, समझे? तो ऐसा कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से जो पत्राचार है उसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, माने हिंदी और अंग्रेजी में। यदि हिंदी में है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी होना है, अंग्रेजी में है तो हिंदी अनुवाद भी होना है। तो आप जानते हैं, जब कभी केंद्र सरकार की तरफ से, किसी भी मंत्रालय की तरफ से, किसी भी दफ्तर की तरफ से जब भी कोई पत्र आपको मिलते हैं तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी में सब कार्य होंगे, समझे? तो यही नियम है। और ऐसा कहा गया है कि हमेशा बीच बीच में हर एक कार्यालय के हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या वह भी समय समय पर अवधारित करे, ऐसा भी नियम है। माने those who are working knowledge in Hindi, it should be intimated to the office. Okay, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या समय समय पर अवधारित करना चाहिए। और हिंदी केंद्र सरकार के सभी जो संस्थाएं होती है उनमें हिंदी सीखने के लिए और सिखाने के लिए कार्यशालाएं भी होती रहती है। यह नियम है, कार्यशालाएं होनी चाहिए हिंदी के लिए। तो आप जानते हैं हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं सितंबर 14 के आसपास, हिंदी पखवाड़ा माने फोर्टनाइट, और हिंदी सप्ताह, हिंदी वीक का ऑब्जर्व करते हैं हम, हिंदी सप्ताह का आचरण करते हैं, क्योंकि यह नियम है कि हम राजभाषा का उपयोग करें, समझे? और हिंदी के संभावना, हिंदी सीखने से आप हिंदी सीखने से आपको क्या क्या लाभ है? तो देखिए, आपने तो हिंदी आपकी डिग्री के इस शिक्षा के समय आपने हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में चुना है। तो आपके सामने आपके अपने विषय में जो नौकरी के लिए जो स्कोप है, उससे एक अतिरिक्त स्कोप भी आती है कि आपने हिंदी को चुना, समझे? तो हिंदी को आपने दूसरी भाषा के रूप में चुना है, इसलिए आपके आगे दोहरी संभावनाएं होती है। एक तो आपके अपने सब्जेक्ट में आप बढ़ सकते हैं, और यदि कोई अपने सब्जेक्ट में
पुनः पढ़ नहीं पाते तो वे हिंदी को चुन सकते हैं अपने पीजी के शिक्षा के लिए। तो देखिए पीजी में आपने हिंदी पढ़ी और आपको काफी अच्छा अंक है, तो आप कई कार्य कर सकते हैं। यदि आप अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं और नेट भी हासिल करते हैं तो सभी जगहों में केंद्रीय हिंदी सभी केंद्रीय संस्थाओं में हिंदी अनुवादक माने हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी सलाहकार, हिंदी एडवाइजर, हिंदी अधिकारी, हिंदी ऑफिसर आदि पद है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, समझे। तो आपकी एक एडिशनल स्कोप है, आपके डिग्री के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको स्कोप है और उसी तरह हिंदी को अपने सेकंड लैंग्वेज के बारे में चुना है, इसलिए आपके आगे एक एडिशनल स्कोप भी होता है कि इसके बाद यदि आपके अपने सब्जेक्ट में आप पीजी नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में पीजी कर सकते हैं। तो आपके हम कोच्चि विश्वविद्यालय जो है श्री कालड़ी श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय है और पूरे भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं, सब कहीं हिंदी की कई तरह की कोर्सेस है और आप एंट्रेंस लिख सकते हैं और वहां भर्ती हो सकते हैं और आप इन सब पदों के लिए, इन सब नौकरी के लिए आप आवेदन कर दे सकते हैं। तो आपको इतनी बड़ी संभावनाएं हैं और आप डायरेक्टर होके आप डायरेक्टर बन सकते हैं और हिंदी एम्बेसडर बन सकते हैं। बहुत ही वेतनदार नौकरी है ये सब। और आप देखिए अभी फिल्मों की दुनिया में हिंदी भाषा जो जानते हैं उनकी बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि सब फिल्मों के अनुवाद हिंदी में होते हैं और अन्य भाषाओं में भी होते हैं। तो यदि आप हिंदी जानते हैं तो आप मलयालम भी जानते हैं तो हिंदी फिल्म का मलयालम में आप बदल सकते हैं। आप सुनते हैं ना तेलुगु फिल्म अल्लू अर्जुन के जो फिल्म है उसको मलयालम में आकर कितनी गंदी भाषा बोलती है ना। तो यदि आप हिंदी और मलयालम जानकर आपकी भाषा भी अच्छी है तो आप तुरंत ही वहां एक नौकरी हासिल कर सकते हैं। और समाचार पत्रों में, चैनलों में, दूरदर्शन में हिंदी भाषी लोगों की बड़ी जरूरत है और सोशल मीडिया में भी आप जानते हैं ट्रांसलेटर्स की जरूरत है। तो आप बहुत जल्द हिंदी सीखने के कारण आपकी जो नौकरी की जो संभावना है वो बढ़ती है, समझे। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि हमें मालूम है कि भारत में सब कहीं विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज है, तो सभी यूनिवर्सिटीज में हिंदी की शिक्षा होती है। और विदेशी विश्वविद्यालय हैं, कुछों का नाम तो मैं बता देती हूँ। यदि आप पीजी करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ एशियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ वाशिंगटन ऑफर्स BA, MA एंड PhD इन हिंदी, समझे। University of Chicago, first, second, third and fourth year programs in Hindi. They offer first, second, third and fourth year programs in Hindi. It also offers content courses in aspects of Hindi literature for advanced students. देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, वहाँ भी UG और PG प्रोग्राम्स है। द स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड लिंग्विस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफर्स बोथ UG एंड PG प्रोग्राम्स इन हिंदी। और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है द डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज ऑफर्स 3 levels of instruction in Hindi language. There is also a placement cell for Hindi learners. देखिए placement cell for Hindi learners. Then the Australian National University, University of Iowa, USA के University of Iowa आदि भी हिंदी में प्रोग्राम जो है वे देते हैं। और हिंदी भाषी देश जो है यानी हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज, अब देखिए सुनिए, हमारी जानकारी में भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बाकी सब नहीं है। तो देखिए कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है। भारत, नेपाल, मॉरिशस,
सूरीनाम, त्रिनिदाद, बांग्लादेश, टोबांगे, फिजी, यूनाइटेड स्टेट्स और दक्षिण अफ्रीका में हिंदी बोली जाती है। फिजी में हिंदी राजभाषा के रूप में सम्मानित है। फिजी में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और पश्चिम बंगाल में, अब देखिए, भारत में पूरे हिंदी प्रदेश में हिंदी मातृभाषा के रूप में है और वहाँ सरकारी कामकाज भी राजभाषा भी भारत के हिंदी क्षेत्र के प्रदेशों में हिंदी राजभाषा है। और पश्चिम बंगाल में जो हिंदी प्रदेश नहीं है, वहाँ बंगाली और हिंदी दोनों का उपयोग होता है और केंद्र शासित प्रदेश में भी हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त है। तो देखिए, हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के एक महान साहित्यकार ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है अहाई, सब उन्नति को ह्वाई। तो हमारी अपनी भाषा जब विकसित होती है तब बाकी सब प्रगति ऐसे ही होती है। तो भारत की राजभाषा के रूप में जब हिंदी को चुना गया तो दक्षिण के कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु आदि ने इसका विरोध किया। तो वहाँ अंग्रेजी ही कामकाज की भाषा है। लेकिन केरल में हमने तो त्रि लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया है। अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है और मातृभाषा भी पढ़ाई जाती है। तो हिंदी बहुत ही सरल भाषा है। तो सब लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये तो एक गलत अवधारणा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी तो सब भाषाओं में एक है, लेकिन भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का रूप दिया गया है। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राष्ट्रभाषा हम जानते हैं, हिंदी भारत में 22 भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज वही नहीं है। हिंदी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारतीय संविधान के मुताबिक 1949 सितंबर 14 को हिंदी को राजभाषा का पद भारतीय संविधान के अनुसार घोषित किया गया था, पद प्राप्त हुआ था और ऑफिशियल लैंग्वेज है, समझे। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो आप हिंदी चुनिए, पढ़िए और हिंदी की प्रगति में हाथ बंटाइए। इतना कहकर सबको एक और बार धन्यवाद देती हुई मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जिस प्रकार फूलों की सुगंध लोगों के सांसों में समा जाती है, उसी प्रकार आज का यह लम्हा डॉक्टर शालिनी मैम के आने से खुशनुमा बन गया। आज की सूचनात्मक और मनोरंजक सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए दीपांजलि मैम का स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद आदिरा। अब सबने हिंदी भाषा, दशा और दिशा के बारे में हमारे मुख्य वक्ता के वक्तव्य सुने हैं। तो मेरा विषय जो है वो हिंदी भाषा से थोड़ा अलग है। मेरा विषय है स्त्री जिसमें रसोई रहती है। मेरे प्रपत्र का शीर्षक है स्त्री जिसमें रसोई रहती है। प्रपत्र में मैं थोड़ा स्त्रीवाद के बारे में कह रही हूँ और एक कहानी है, माँ रसोई में रहती है, उनके बारे में कहने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। शीर्षक है स्त्री जिसमें रसोई रहती है। स्वतंत्रता के पूर्व नारी की जो स्थिति थी उसका परिदृश्य बहुत कुछ बदल चुका है। आज वो प्रगति की ओर कदम रख चुकी है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को समान दर्जा अधिकार दिया जाने के बावजूद भी विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं अभी भी पुरुषों से काफी पीछे है। विशेषकर भारतीय समाज में स्थिति गंभीर है। यहाँ महिलाएं आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है। भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज की सशक्त इकाई एवं संस्था परिवार है। इस परिवार संस्था से व्यक्ति सदियों से बंधा है। यहाँ पुरुष ही परिवार का कर्ता है, अर्थात परिवार में पिता, पति व पुत्र ही श्रेष्ठ है।
इस प्रकार के पितृसत्तात्मक परिवार की स्त्रियां अधिकारों से शून्य और कर्तव्यों से बाध्य एक दासी की जिंदगी जीती आई है। इसके कारण उसे जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार एक पुरुष सत्तात्मक समाज में विविधतापूर्ण जिंदगी घर की चार दीवारी के अंदर व्यतीत करने वाली महिलाओं की संख्या कम नहीं है। स्त्री सुरक्षा के नाम पर समाज की तरफ से स्त्रियों के लिए जितनी भी व्यवस्था तैयार की गई है वे सब वास्तव में स्त्री के खिलाफ है, मात्र उसके अस्तित्व को न्योछावर करने के योग्य है। इसमें सबसे प्रथम आता है विवाह। 21वीं सदी में भी स्त्री के लिए विवाह एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी के तौर पर देखी जाती है, इसलिए मर्जी के खिलाफ भी जाकर उसका विवाह किया जाता है। लेकिन विवाह के बाद की जिंदगी को स्त्री कैसे अनुभव करती है, इस बात का समाज को कोई अंदाजा भी नहीं है। श्री शांति कुमार ज्याल के अनुसार विवाह घर और परिवार को स्त्री को सुरक्षा प्रदान करने वाले साधन माना जाता रहा, किंतु इसी घर और परिवार में उसे कैद कर उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं की समाधि बना दी जाती है। स्त्री इस वास्तविकता से अनभिज्ञ भ्रम की अवस्था में जीती रहती है। अर्थात परिवार में स्त्रियों को सीमित अधिकार ही दिए जाते हैं, उसके चारों ओर परिवार एवं पति अपना अधिकार जमाता रहता है। ज्यादातर भारतीय स्त्रियों का कार्यक्षेत्र मात्र परिवार है, वो हर आयु में पुरुष के अधीन रहती है। ये दासता कभी न समाप्त होने वाली कड़ी है। ग्रामीण परिवार से लेकर महानगरीय परिवारों तक देखा जाए तो महसूस कर सकते हैं कि महिला की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ज्यादातर भारतीय स्त्रियां दुखी, परेशान और पारिवारिक तनाव में जिंदगी गुजारती है। कुमार अंबुज की कहानी माँ रसोई में रहती है इस प्रकार से गृहस्थी चलाने वाली एक औरत की कहानी है। कहानी में स्त्री जीवन की सूक्ष्म संवेदनाओं एवं भावनाओं का चित्रण है। कहानी की नायिका स्वयं लेखक की माँ है। जब कभी रात को कहानीकार की नींद खुलती 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे या फिर सुबह सुबह 5 बजे, उसे माँ रसोई में ही मिलती है और हर बार वो रसोई में होने का कोई ना कोई बहाना बनाती है। उसका सारा काम रसोई से संबंधित होता है। स्त्री की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। प्रातःकाल में सबसे पहले उठकर रसोई का काम शुरू करने के बाद पूरे परिवार का सारा कार्य खत्म करके सबसे बाद में सोने जाती है। कहानी में लेखक जब माँ से सुबह 3 बजे रसोई में होने का कारण पूछते हैं तो माँ कहती है, मैं इतना ही सोती हूँ, तुम जाकर सो जाओ। परिवार वालों का सारा कार्य निश्चित समय के अंतर्गत पूरा करना हर स्त्री का उत्तरदायित्व माना जाता है। इसीलिए यहाँ माँ को अपनी नींद की कोई परवाह नहीं, वो परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में ही ध्यान देती है। इतना ही नहीं, माँ का सारा काम रसोई में ही होता है। अखबार पढ़ने से लेकर सारा काम वह रसोई में बैठकर ही करती है। उसके सारे काम रसोई से संबंधित होते हैं और उसके अपने सभी काम भी रसोई में ही संपन्न होते हैं। ब्लाउज के हुक टांकने से लेकर गेहूं फटकने तक के सारे काम। साल में एक आध बार मौसी या बुआ को पत्र लिखती है तो वहीं रसोई में बैठकर गोद में कोई किताब रखकर कॉपी का पन्ने पर। इस प्रकार माँ हमेशा रसोई में ही रहती है। यदि कभी दरवाजे तक आना हो तो वो रसोई में से आती है और वापस रसोई में ही चली जाती है। यहाँ व्यक्त है कि पुरुष को बाहर आने जाने के लिए जितनी स्वतंत्रता है, स्त्री के लिए उतनी ही बंदिशें हैं। जिस सामाजिक नीति पुरुष को बाह्य लोक का वातावरण प्रदान किया, वही सामाजिक नीति ने ही स्त्री को घर के अंदर रहने को बाध्य बनाता है। दिन रात परिवार की सेवा में लगी स्त्री अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को धीरे धीरे भूल जाती है। कहानी की माँ भी ऐसी ही है। अपने पसंद का कोई गाना रेडियो पर आने पर भी रसोई से निकलकर रेडियो के पास आकर आराम से बैठकर उसका आस्वादन नहीं करती, बल्कि रसोई से ही आवाज देती है कि रेडियो की आवाज थोड़ा तेज करो, यहाँ रसोई तक आवाज नहीं आ रही है। इस तरह कई परिवारों में स्त्री की स्थिति दयनीय होती है। कहीं जीवित होते हुए भी उसकी कोई जिंदगी नहीं होती, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता।
भारत में एक आदर्श गृहिणी की छवि कुछ इस प्रकार होती है कि परिवार की खुशी को अपनी खुशी मानने वाली, परिवार के सदस्यों को खुश रखने की कोशिश करने वाली, पति और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता में पौष्टिक खाद्य पदार्थ जुटाने वाली, लाजवाब खाना बनाकर परिवार को खिलाकर किसी व्रत के नाम पर स्वयं भूखी रहने वाली है एक आदर्श नारी। वो घर की छोटे छोटे चीजों का भी हिसाब रखकर आर्थिक रूप में परिवार की रक्षा करती है और अपनी बीमारी को नजरअंदाज करके या अपने शरीर के दर्दों को घर की बनाई किसी मलहम या बूटी से दूर करके फालतू का खर्चा बचाने वाली होती है। माँ रसोई में रहती है, कहानी की माँ भी इससे भिन्न नहीं है। वो रात के 12 बजे भी रसोई की दीवार पर लगे कैलेंडर पर दूध का हिसाब लिखती है। पाव पर मोच आने पर हल्दी की पुलटिस तैयार करके लगा देती है। ज्यादातर औरत की जिंदगी ऐसा ही होता है। शारीरिक, यौनिक, मानसिक या भावनात्मक रूप में शोषित होने के बावजूद भी सब कुछ सहकर वो सेवाशील बहू, ममतामयी माँ और प्रेममयी पत्नी के रूप में घर को स्वर्ग बनाने को बाध्य होती है। उसकी दुनिया का दायरा पति, घर और बच्चों तक सीमित होता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार उन स्त्रियों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं जो अपनी आशा एवं आकांक्षाओं को तिरस्कृत कर सदियों से रसोई में दम घुटकर जीती आई है। वे रसोई से बाहर निकलना तो चाहती है मगर उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। कहानी की माँ बताती है, शुरू में बेचैनी होती थी मगर अब मुझे घर का काम करना ही अच्छा लगता है। घर में ही इतना घूमना फिरना हो जाता है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं लगती। यहाँ माँ का हमेशा रसोई में रहना भी प्रतिरोध का एक तरीका है। कहीं प्रतिरोध ऐसा भी होता है कि जिसका विरोध करना हो उसे आत्मसात करे, क्योंकि कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसा बन जाता है कि उसके सामने निस्सहाय हो जाते हैं। जिन परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त न होता हो उन्हें चुपचाप स्वीकार करना भी प्रतिरोध का एक अलग रवैया होता है। कुछ सामाजिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें अतीत में हैं और वे आज भी एक वट वृक्ष की तरह खड़ी होती है। प्रस्तुत कहानी के दौरान सामाजिक व्यवस्था के चंगुल में पड़कर अनचाही जिंदगी जीने को मजबूर भोली भाली स्त्रियों की वीरता का स्वर मुखरित होता है। इतना ही है प्रपत्र, एक छोटा सा प्रपत्र है, यहाँ खत्म होता है। किसी को कुछ शंका हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद मैम। यदि किसी को सत्य से संबंधित कोई संदेह हो तो वह इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए दीपांजलि मैम का स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद आतिरा। बहुत समय की बहुत पाबंदी है इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहे कोई, ठीक है। तो मेरा कर्तव्य है कृतज्ञता ज्ञापन करना। सबसे पहले मैं हमारे प्रेरणा केंद्र महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सुनील सिंह मैथ्यू सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने अभी कहा कि वो हमारे प्रेरणा केंद्र है तो इससे आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि उनकी प्रधानता क्या है ये समझने के लिए। तो आदरणीय सुनील सर, आपका मैं विभाग की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
अगला है हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर शालिनी जोस मैडम, जो भारत माता कॉलेज के प्राध्यापिका एवं विभाग अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य के जरिए हमें जैसे मार्गनिर्देशन कर दिया है। जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि भाषा पढ़ने से अपना करियर कैसे बन जाएगा। कहते हैं कि भाषा पढ़ने से सिर्फ अध्यापन ही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्त किया है यहाँ की भाषा पढ़ने से मात्र अध्यापन ही नहीं और भी अनेक विकल्प है। जैसे हिंदी भाषा पढ़ने से अनेक विकल्प हमारे सामने आते हैं करियर बनाने के लिए। और शुरुआत में थोड़ा जब्र करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं ना जब्र के फल मीठा होता है, तो ये भी बहुत मीठा ही रहा। हम आपके आभारी हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य हिंदी भाषा दशा और दिशा के जरिए हिंदी भाषा पढ़ने के बाद करियर बनाने के अनेक विकल्प हमारे सामने रखे हैं। आपके वक्तव्य से हम सब लाभान्वित हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर शालिनी जोस मैडम, आपकी मैं महाविद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। अगला है हमारे विभाग अधीक्षा आदरणीय श्रीमती अंजू बी, जिनकी कठिन परिश्रमों के फलस्वरूप ये वेबिनार संभव हो पाया है। उनकी मैं महाविद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर है और हमारे महाविद्यालय के अनेक गुरुजन है यहाँ प्रस्तुत, अन्य गुरुजन भी यहाँ प्रस्तुत है, जैसे जुवोलॉजी विभाग के आदरणीय डॉक्टर सुनील के जोस सर, जिन्होंने इस वेबिनार को संभव बनाने की सारे तकनीकी सहायता हमें प्रदान की है। उनका मैं विभाग की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे बच्चे, परीक्षा के समय है, रात हो गए, लेकिन फिर भी उनकी भागीदारी यहाँ खूब दिख रही है। अब सबको मैं विभाग की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Okay, thank you all of you. You can left the meeting.